creation of human intellect, such as artistic, literary, technical, or scientific creations, and intellectual property rights, refers to the legal rights to given to the inventors or creators to protect his or her innovation to or creation for a certain period of time so that they may derive certain financial benefits out of it. Keeping in view the significance of IPR in development of economy, Government of India is now emphasizing more on its awareness among different sections of society and academics, scientists, artists, entrepreneurs, students, etc. And that is why Ministry of Education has incorporated IPR as a major component of IIC and IQAC in our institute level. Hence, we have planned this workshop for our students and faculty to have a better understanding. सर अनम्यूट कर लीजिए बलेश सर, आप म्यूट हो गया माइक. Sorry. Before I invite him to deliver his talk, let us know a little about his profile so that we may know to whom we are going to listen. We have received a very long but very lengthy biodata of Dr. Ashwini Siwal. I am going to read here only two achievements. Dr. Ashwini and Technology and Law from National Law Institute, University of Bhopal. He specialized in intellectual property laws and his research interests in technology and law. He was selected to attend training of iTrainers, Japan Patent Office, Tokyo. He is the director of LC2 Entrepreneurial Law at faculty. 12 years of experience of teaching law at different institutes. Dr. Ashwini Siwal has written extensively on topical IP issues frequently was talk on CI, 50 online lectures and 30 expert talks on IP and IT. Survey course 10 on IP in association with government department and law firms. He has published articles and research papers in reputed research journals and magazines. To name a few: India Today, Pramana Research Journal, Journal of Law Teachers in India. He is also a member of law subject expert group evaluation CEC. He is also a member of High Powered National Committee on IP of Confederation of Indian Industry, which is comprised of several vice chancellors of universities and key persons of the industry. His vision include IP awareness, IP commercialization, and IP enforcement. He conducts several outreach programs in order to achieve emphasizes on involvement of younger generation in this process. So we are fortunate to have such a knowledgeable and experienced person with us to share his expertise and knowledge. I'm sure we will all be really benefited by his discourse on the subject, and our understanding and knowledge on IPR issues will be better, deeper, and wider. The participants may put up their queries in chat box. Dr. Aarti will take up all these queries after the talk. A feedback form link will also be shared in the chat box at the end, and certificates will be issued to the participant who will submit the feedback form. So with these words, I would like to invite and request Dr. Siwal to deliver his talk on the participants. Over to you, sir. Sir, thank you so very much for your kind words and encouraging words. Indeed, it is my pride, privilege, and honor to be invited second time to this prestigious institution. I am very glad to be associated with आपकी this. आवाज नहीं आ रही है अश्विनी जी. Sorry, एक minute. हेलो.
अभी आ रही है सर? Yes, Am sir. I Yes, sir. audible? You are audible. Yes, sir. Ashwini, sir, you are audible, please. Okay, fine. I hope I am audible and visible too. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Well, thank you so very much for the kind introduction, Dr. Balesh ji. It is my indeed privilege and honor to be invited again. In fact, it is my second opportunity to contribute to this prestigious institution in Haryana. I am really very glad to be part of it again. Thank you so much to the entire staff of this college who had invited me second time for this special talk or expert talk on the subject. And I would also like to extend my gratitude to the principal in his absence for having me here. And also would like to say quickly two sentences about this institution. When I visited this institution before Corona, right? It was my wonderful experience. You know, I would have loved to come again and visit in person had it been the normal times or there had not been a Corona. I would have physically come and met many people over there, many friends like Dr. Balesh and others. So thank you so very much. Well, so far as this topic is concerned, Dr. Balesh had already set the tone, and he had perhaps, given you the cursory outlook or understanding about the subject, about intellectual property protection or intellectual property rights. His statements which he made were, in fact, very relevant. That IPR basically contributes to economy, it contributes to GDP, it contributes into individuals' own development. We all see that there are several kinds of works which are being created or are created by the innovators. They they are perfect works, or you may say the perfect subject matters for exploitation, commercial exploitation and monetization. So I would like to give you some examples before I start with describing what does intellectual property actually mean, and how we see its different classifications. But before that, I would like to give example of few nations who, in fact, excelled uh, economically and progressed economically and otherwise because of exclusively because of intellectual property. We have examples like of Japan. We have examples of uh, China. These economies, China and Japan, they are predominantly or heavily relying on IPR, or you may say intellectual property. And intellectual property is one of the very important and significant factors into the growth of these nations. In fact, US also, to a certain extent, we can say, in the initial period when IPR ecosystem developed in US, also excelled exclusively because of intellectual property. Even today, US is a pioneer nation so far as the IP protection or US IP base is concerned, right? Then it is being followed by China, Japan. We have many examples. Like we have examples of a small nation, so like Singapore also. They have also excelled because of intellectual property or the protection, or you may say the uh, 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 weightage their government provides to this particular subject or this particular system, right? Well, those who are new to this field, they may be perhaps wondering what does IP mean and how IP can be protected. In this 1 hour interaction or 1 hour talk, I would try to quickly tell you what are different kinds of intellectual property and what is intellectual property and how to protect your intellectual property. Understanding the entire subject will take years together, but I can I guarantee you that I will give you some glimpses or some food for thought in today's discussion. Let's quickly move to slide and see how and what is the purpose of and what all is protected under the intellectual property system. Literally speaking, or you may say
primarily IPR means what, or IP means what? It is a creation of your mind or offshoot of your intellect, any result of thought or any intellectual activity. Anything like writing, painting, any scientific invention, or for that matter, chemical formula, any computer program, any image, logo, design, broadcast, performance, cinefilm, music, etc. All these things are protectable under intellectual property system, broadly speaking. And this list is not exhaustive. ये inclusive list hai. It is an inclusive list. There are several other things that can fall into this list, or there are many other things which actually may become part or are part of this list. जस्ट इंडिकेटिव है ये आप लोगों को समझाने के लिए कि कोई इमेज, कोई लोगो, कोई डिजाइन, कोई परफॉर्मेंस, कोई सिनेफिल्म, कोई म्यूजिक वर्क, कोई केमिकल फॉर्मूला, कोई इन्वेंशन, कोई भी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी, या आप ये कहिए कि कोई क्रिएशन आपके माइंड की, ऑफशूट ऑफ योर इंटेलेक्ट, आईपीआर होता है बेसिकली. लेकिन खाली इस मात्र से वो आईपीआर नहीं हो जाएगा कि हेलो, डिड समबडी स्पीक समथिंग? Okay, no issues. Well, I was saying that खाली इस बात से वो IPR protection में नहीं आ जाएगा कि वो image है या वो logo है. You need some qualifications to be met by you before you actually proceed, or you may say before you actually get the protection under the intellectual property ecosystem. वो qualifications भी quickly मैं आपको बताऊंगा, उनसे भी introduce कराऊंगा. Let's move and see few more things. Definition part को मैं skip कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है वो इतना जरूरी नहीं है इस जंक्चर पे. लूज डेफिनेशन जो आप लोगों को समझनी चाहिए यहाँ पे, या लेमन टर्म की जो डेफिनेशन है, वो यही है कि आईपीआर कोई क्रिएटिव वर्क आपका जो होता है, अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने पिक किए, वो इसकी कैटेगरी में फॉल करता है. और क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन दी जाती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पहले भी बात हो चुकी है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इंडस्ट्रियल पर्पज है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सर्व करता है. मैन्युफैक्चरिंग है, एंटरटेनमेंट है, फार्मा सेक्टर है, या इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, या आईटी है, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दूसरा एक बड़ा रोल है आईपीआर का. मैं हिंदी जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है और मैं काफी बोल लेता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के हिंदी यूज कर रहा हूँ ताकि लोगों को इस छोटी सी इंटरेक्शन में फायदा ज्यादा हो. इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण पर्पज है कि प्राइवेट और पब्लिक राइट्स बैलेंस हो जाते हैं. उसका मतलब ये होता है कि जो इनोवेटर है, जो इन्वेंटर है या क्रिएटर है वर्क का, उसका अपना प्राइवेट राइट है, लेकिन जो पब्लिक है, जो उस पर्टिकुलर वर्क को एंजॉय करना चाहती है, तो वो पब्लिक भी एंजॉय कर सकती है उसके फ्रूट्स को. बिकॉज एक बार जब प्रोटेक्शन मिल जाती है तो आपको अपने काम को कमर्शियली इंडस्ट्रियली अप्लाई करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि उसको आपको मोनेटाइज करना पड़ता है, कमर्शलाइज करना पड़ता है. और ये मैंडेट भी है, लॉ ये एनफोर्स भी करता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा. आप आइडल नहीं बैठ सकते कोई प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लेके. उसके लिए यहाँ पे प्रोविजंस हैं कि अगर आप आइडियल बैठे हैं कि मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, केवल प्रोटेक्शन ले लिया, तो कंपलसरी लाइसेंस हो जाते हैं. या दूसरे और तरीके भी हैं लॉ में जो ये कहते हैं कि आप काम करें उस पर, ताकि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो पब्लिक रीप कर पाए या पब्लिक उनको एंजॉय कर पाए. तो एक तरह से ये बैलेंस करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक राइट्स को एक इकोसिस्टम डिराइव हुआ है, डेवलप हुआ है. अब और छोटे मोटे कारण हैं जो सामने आ रहे हैं कि क्यों ये मैटर करती है. तो लुक्रेटिव है, की बिजनेस एसेट है. आज के दिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन अगर करते हो, एसेट वैल्यूएशन अगर करते हो, तो आईपीआर एक बड़ा फैक्टर रहता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैटेंट्स कितने हैं, उसकी ट्रेडमार्क की वैल्यूएशन क्या है, उसकी डिजाइन की वैल्यूएशन क्या है, उसकी कॉपीराइट की वैल्यूएशन क्या है. तो एक की बिजनेस एसेट की तरह भी देखा जाता है. साथ में मैं आपको बताऊं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बहुत ही पायनियर और बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड ओवर, और उनकी जो यूएसपी है, उनकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, या उनकी जो प्रोमिनेंस है, वो प्योरली आईपीआर पे भी बेस्ड है. कुछ सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी फिजिकल एसेट्स कम हैं, लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स इतनी ज्यादा हैं, और वो वर्ल्ड ओवर इतनी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं. कुछ कंपनीज के नाम भी मैं क्विकली लेना चाहूंगा. जैसे अगर आप देखें
तो गूगल ही है, अगर आप देखो तो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू गूगल की फिजिकल एसेट से ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं आपको एप्पल का भी एग्जांपल दूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी कम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू और असेसमेंट ज्यादा है, या की बिजनेस एसेट है उनका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर कैन बी सेवरल एग्जांपल्स। इवन जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेलीफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग है, एरिक्सन है, या और दूसरे बड़े नाम हैं, इन सबको उठा के देखोगे तो इनके पैटेंट पोर्टफोलियो, इनकी ट्रेडमार्क की वैल्यू, या बेवरेजेस का देख लो, कोको कोला है या आपका पेप्सिको है, ये सारे ट्रेडमार्क या किसी बिजनेस मेथड या किसी एक ट्रेड सीक्रेट की यूटिलिटी पे बेस्ड है। आज भी हमें कोको कोला या पेप्सिको की जो ट्रेड सीक्रेट है उस बेवरेज को बनाने की, वो नहीं पता है, राइट? So that is the most important thing that they enjoy. They have physical assets undoubtedly, but those physical assets are being outweighed or have been outweighed by the intellectual property assets owned by these companies. इसी तरह मार्केटिंग के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बड़ा रोल है। आप कोई भी काम करना चाहते हो तो you need a name, you need an indication for your work which would tomorrow be popular or become well known amongst the people. तो एक तरह से एक टूल है फॉर मार्केटिंग गुड्स और सर्विसेज। फिर एक बड़ा रोल है इसका नेशनल लेवल पे, अगर देखो तो इट स्पर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। अभी अभी मैंने कुछ नेशंस के एग्जांपल दिए हैं, तो उन सारे नेशंस की ग्रोथ की अगर केस स्टडीज देखी जाए, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हुई, जिन जिन पर्टिकुलर नेशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा रोल और अहम रोल आईपीआर का ये भी रहता है कि जो आदमी किसी फील्ड में इन्वॉल्व है, जिस काम में इन्वॉल्व है, वो भी इंसेंटिवाइज होता है, वो एनकरेज फील करता है, उसको लगता है कि आई एम गेटिंग समथिंग इन ल्यू ऑफ व्हाट वर्क आई हैव डन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। तो एक रिकग्निशन भी है, एक फेम भी है, और मॉनेटरी बेनिफिट भी है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर अगेन इलस्ट्रेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन सी काइंड्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा पेटेंट्स के बारे में, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो 8 तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ट्रिप्स एक पर्टिकुलर ऐसा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, या एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर डब्ल्यूटीओ, जिसमें 8 तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को या काइंड्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। और मैं उनमें से आपके सामने जो लिख के यहाँ दिखा रहा हूँ, वो केवल मेरे ख्याल से 7 ही दिखा रहा हूँ। एक को मैंने डेलिबरेटली यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, बट बता दूंगा वो भी। बेसिकली ये 7 आती हैं। पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, रिलेटेड राइट को कॉपीराइट में ही पढ़ लीजिए आप। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है, साथ में एक सेमीकंडक्टर डिजाइन एक्ट भी है। तो ये 7, और एक है अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, जो अभी तक इंडिया में लॉ बना नहीं है अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन को लेके। आईपीआर की रिजीम में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम में कोई लॉ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। कॉमन लॉ सिस्टम में अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब प्रोटेक्शन अभी भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। लेकिन ये 8 तरह की प्रॉपर्टीज हैं: पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई, इंडस्ट्रियल डिजाइन, सेमीकंडक्टर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स। इन 8 को ट्रिप्स में रिकॉग्नाइज किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं पेटेंट्स पे आऊं क्विकली, क्योंकि हमारे पास समय कम है, मेरे पास कंटेंट बहुत है, आपको 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है पूरे सारे टॉपिक्स को समझने में डिटेल में, लाइक अ लॉ स्टूडेंट और अ लॉ स्कॉलर। लेकिन यहाँ मेरा पर्पज वो नहीं है, मेरा इंट्रोडक्शन का पर्पज है केवल। तो अगर पेटेंट्स देखें तो पेटेंट्स किन चीजों को मिलता है? पेटेंट्स प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट, इट मे बी अ ड्रग, it may be any product for that matter, any mechanical apparatus or chemical outcome, whatever, that thing will get the patent protection as a product under the patent system. और प्रोसेसेस को भी पैटेंट इंडिया में मिलता है, पहले से ही मिलता रहा है। इनफैक्ट प्रोडक्ट पैटेंट 2005 के बाद मिलने लगा है, उससे पहले प्रोसेसेस पे ही पैटेंटिंग होती थी। इसका मतलब ये है कि केवल किसी चीज को बनाने के प्रोसेस को ही पेटेंट होता था,
लेकिन उस 2005 में अमेंडमेंट लाई गई, उसके तहत अब प्रोडक्ट्स को भी पेटेंट मिलता है। मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए मैं A+B+C फॉर्मूला अप्लाई करके कोई D चीज बनाता हूं, तो मुझे A+B+C फॉर्मूला पे भी पेटेंट है, साथ में उसकी जो आउटकम है, एंड प्रोडक्ट है D, उस पे भी पेटेंट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन क्वालिफिकेशंस टू बी मेट। वो क्वालिफिकेशंस तो आपको अनडाउटेडली मेट करनी ही पड़ेंगी। अगर पेटेंट्स की बात करी जाए तो नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस और यूटिलिटी होनी जरूरी है पेटेंट्स के लिए। किसी भी वर्क में अगर नोवेल्टी नहीं है, नॉन ऑब्वियसनेस नहीं है या यूटिलिटी नहीं है, तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। ये तीनों सेपरेट क्वालिफिकेशंस हैं, तीनों बड़ी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रेनुअस और बड़ी रिगरस क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको प्रूव करनी पड़ती हैं, और पेटेंट एग्जामिनर या पेटेंट ऑफिस इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर आपके वर्क को असेस करता है पहले, फिर उसके बेसिस पे पेटेंट ऑफिस से आपको पेटेंट ग्रांट होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पेटेंट पाने में बहुत मशक्कत होती है, सालों लग जाते हैं पेटेंट पाने में, या पेटेंट अप्लाई करने में भी सालों लग जाते हैं, क्योंकि उस लेवल पे पहुंचना कि आपका वर्क वर्दी हो प्रोटेक्शन के लिए, इट्स नॉट इजी। और फिर उस वर्दी वर्क का कहीं और जिक्र ना हुआ हो, कहीं और एग्जिस्टेंस में ना हो वो वर्क, या कहीं और पेटेंट ही ना हो गया वो वर्ड हो, ग्लोबल लेवल पे सर्च करी जाती है। अगर कहीं पे भी ग्लोबली भी पाया गया कि आपके वर्क से मिलता जुलता वर्क कहीं और है, तो आपका वर्क नोवेल नहीं होगा उस सिचुएशन में, वो एक नया काम नहीं है, उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर साथ में ये भी देखा जाता है कि आपका वर्क ऐसा तो नहीं है कि वो ऑब्वियस हो किसी के लिए, जो आदमी उसी फील्ड का है, स्किल्ड है इन दैट आर्ट। मान लीजिए कोई आदमी है एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड है, चाहे वो पंक्चर लगाने वाला ही क्यों ना हो, उस आदमी को पंक्चर लगाने के तरीके का पता है। तो एक कल एक्स आदमी है, वो कहता है कि मैंने नया तरीका इजाद किया है पंक्चर लगाने का, लेकिन जब पेटेंट ऑफिस उसको एग्जामिन करेगा तो वो खाली आपके कहने पे नहीं जाएगा, वो ये देखेगा कि वाकई में कि कोई नया तरीका इजाद हुआ है या ये केवल क्लेम है। तो वो ये भी देखेंगे कि अगर किसी नॉर्मल पंक्चर वाले को या नॉर्मल स्किल्ड आदमी को, उस आर्ट की स्किल्ड आदमी को ये काम दे दिया जाता तो क्या वो भी कर लेता है ऐसा ही। और अगर ये पाया गया कि वो भी ऐसा ही कर लेता, राइट, तो इसका मतलब आपका काम पेटेंटेबल नहीं है, आपके काम को पेटेंट उस सिचुएशन में नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण ये है कि एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका वर्क ऑब्वियस नहीं होना चाहिए टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस। लेकिन यहाँ क्योंकि उस पंक्चर लगाने वाले को आपका वर्क देख के ही उसने कहा कि इसमें क्या नया है, ये तो मैं भी कर देता, तो उस मात्र से ही ये हो गया कि वो वर्क ऑब्वियस है टू होम, टू द पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट। तीसरी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपके वर्क में कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, उसमें कोई कमर्शियल एंगल होना चाहिए, उसकी कोई कमर्शियल बेनिफिट या यूटिलिटी होनी चाहिए, राइट। और जैसे ही आपके वर्क में कोई यूटिलिटी दिखती है तो पेटेंट ऑफिस आपको पेटेंट ग्रांट कर देता है। अब मैं इसके बाद एग्जाम्पल स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना समय भी नहीं है हमारे पास, मैं ट्रेडमार्क पे आता हूँ। ट्रेडमार्क किन चीजों पे मिलता है, आप देखोगे तो ट्रेडमार्क एक अलग काइंड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ये वर्ड, लोगो, न्यूमरल, लेटर, सिंबल, सिग्नेचर, कलर कॉम्बिनेशन और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, इन सारी चीजों पे मिलता है ट्रेडमार्क बेसिकली। कि कोई लोगो है, कोई वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, न्यूमरल हैं, जिनको आप इन द कोर्स ऑफ ट्रेड यूज करना चाहते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के साथ। और प्राइमरी रोल क्या रहता है ट्रेडमार्क का कि वो इंडिकेशन की तरह काम करते हैं आपके गुड्स को, उनकी ओरिजिन को, उनके सोर्स को दर्शाने के लिए कि ये गुड्स किसने बनाए। अब हम देखते हैं मार्केट में पार्ले जी बिस्किट आता है तो वी नो कि पार्ले प्रोडक्ट्स का है पार्ले जी बिस्किट। और ऐसे ही हम देखते हैं कि दूसरे जितने भी गुड्स हैं, चाहे वो ये जितने भी लोगो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, ये सारा इनका पर्पज क्या है, जीप है, मर्सिडीज है, बुकाटी है, या जितने लोगो मैंने यहाँ लगाए हैं, या साथ में ये और ट्रेडमार्क के एग्जांपल्स हैं कुछ, है ना, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे होगे, ये सारे के सारे एक ही मकसद के साथ यूज किए जाते हैं कि कोर्स ऑफ ट्रेड में हमारे गुड्स को, हमारी सर्विसेज को ये रिप्रेजेंट करें और लोग इनसे हमारे वर्क्स को एसोसिएट कर पाएं, लोग हमारे वर्क्स को पहचान पाएं या हमारे गुड्स को डिस्टिंग्विश कर पाएं कि ये फलां के गुड्स हैं, ये सोनी के गुड्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के गुड्स हैं, ये कार्ल्सबर्ग है, ये कोको कोला है, ये मर्सिडीज की गाड़ी है, ये टोयोटा की है, या ये कैनन का साइन है, राइट। तो इन सारी
ट्रेडमार्क्स का पर्पज कहीं ना कहीं अपने गुड्स को डिस्टिंग्विश कराना है दूसरे लोगों के गुड्स से, और ये कह सकते हो कि अपने गुड्स को डिस्टिंक्ट दिखाना है दूसरे लोगों के गुड्स से या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के गुड्स से या उनकी सर्विसेज से। अब इसमें अभी आपको कुछ क्वालिफिकेशंस मीट करनी पड़ती हैं। कोई भी आदमी जब ट्रेडमार्क लेने जाता है या ट्रेडमार्क अप्लाई करता है या ट्रेडमार्क यूज करना स्टार्ट करता है, तो ध्यान रहे कि आप हमेशा किसी और का ट्रेडमार्क यूज ना करें या किसी और से डिसेप्टिवली सिमिलर, आइडेंटिकल या कंफ्यूजिंगली सिमिलर ट्रेडमार्क यूज ना करें। वो डिसेप्टिव सिमिलैरिटी या कंफ्यूजिंग सिमिलैरिटी विजुअल या फेनेटिक किसी तरह की भी ना हो। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखे अलग तरह जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस एक तरह से करे जाते हैं या उनमें फेनेटिक सिमिलैरिटी होती है। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो विजुअल सिमिलैरिटी वाले होते हैं लेकिन स्पेलिंग उनकी भी अलग होती है, या फिर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो छोटी मोटी एक लेटर इधर उधर होती है और आइडेंटिकल होते हैं या ये बोलिए कि सिमिलर होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई ऐसा वर्ड या ऐसा मार्क या ऐसा लोगो, डिवाइस, सिंबल, न्यूमरल, लेटर, कलर कॉम्बिनेशन यूज ना करें जो किसी और का हो, किसी और एंटिटी का हो या उससे मिलता जुलता हो। अवॉइड करें। अगर आप रजिस्टर कराने जाएंगे तो हो सकता है कि वो रिफ्यूजल हो जाए उसका, उसको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन ना मिले। साथ में एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि ट्रेडमार्क जब भी ऑप्ट करें तो ट्रेडमार्क ऐसा ऑप्ट करें जो डिस्टिंक्टिव हो, जो आपके गुड्स को डिस्क्राइब ना करे, जो आपके गुड्स की दूसरे गुड्स से उसमें कैपेसिटी हो डिस्टिंग्विश करने की, या दूसरे प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क से अपने आप को डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी हो। साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसका हो सके, जिसको आप ग्राफिकली रिप्रोड्यूस करके या रिप्रेजेंट करके ट्रेडमार्क ऑफिस सबमिट कर पाए। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसको लिखना ग्राफिकली आसान है, या इंटेल इनसाइड है या सोनी है, इनको लिखना आसान है, या कोई भी इनमें से लोगो है उनको दिखाना दर्शाना आसान है। लेकिन कोई चीज ऐसी जो दर्शाई नहीं जा सकती तो ट्रेडमार्क लोग कहता है कि उस पर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल प्रोटेक्शन नॉन कन्वेंशनल या ये कहिए कि नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स पे भी मिलने लगी है। जैसे कि साउंड मार्क है, साउंड को आप दर्शा नहीं सकते, नोटेशंस उसकी दिखाई जा सकती हैं, दर्शाई जा सकती हैं, लेकिन एज सच साउंड या स्मेल मार्क है फॉर दैट मैटर। कुछ प्रोडक्ट्स को स्मेल से ही पहचान लिया जाता है, उसका कोई नाम नहीं होता। इसी तरह कुछ चीजों को साउंड से पहचान ले दिया जाता है, उसका कोई नाम नहीं होता, या उसका कोई वर्ड, लेटर, न्यूमरल नहीं होता या सिंबल नहीं होता। केवल साउंड ही ट्रेडमार्क की तरह काम करती है। तो इस तरह के ट्रेडमार्क भी होने लगे हैं दुनिया में, भारत में भी होने लगे हैं। फिर देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको छोड़ दीजिए। अब कॉपीराइट पे आते हैं, अगला सेगमेंट है। कॉपीराइट किन चीजों पे मिलती है? फोटोग्राफी, पेंटिंग, और इसके अलावा लिटरेरी वर्क, कोई किताब है, स्कल्पचर है, साउंड रिकॉर्डिंग है, इन सारी चीजों पे आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। कॉपीराइट लॉ बहुत ही एग्जॉस्टिव और लेंदी है और यहाँ इस छोटे से ड्यूरेशन में तो पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बातें मैं बता दूं कि कॉपीराइट पाने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपके वर्क में ओरिजिनलिटी हो। अगर आपके वर्क में ओरिजिनलिटी नहीं है तो आपके वर्क को कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिले। अब ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? ओरिजिनलिटी का मतलब है कि वर्क जो है वो आपसे ओरिजिनेट हुआ हो और किसी और आदमी के वर्क से कॉपी ना किया गया हो। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओरिजिनल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉपीराइट लॉ। आपके स्किल, आपके जजमेंट से कोई वर्क ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि वो किसी और के वर्क की सब्सटेंशियल कॉपी नहीं है, तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन वहां मिल जाती है। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं इसको ना। अब आप देख रहे होंगे कि कॉपीराइट पे दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हैं, लाइक सिने फिल्म्स हैं, कितनी मूवीज हैं भारत में, जितनी भी मूवीज हैं मेजोरिटी में या 90% मूवीज का प्लॉट एक ही रहता है या आइडिया एक ही रहता है। वो क्या है? कोई लव स्टोरी होती है, एक विलन होता है ना? इस तरह की प्लॉट्स पे मूवीज बनी होती हैं ज्यादातर। या किताबें देख लो, अगर किसी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब करूं मैं बात, तो मैं कहूंगा कि लाइब्रेरी साइंस का कोई किताब लिखना है, उसके किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई भी किताब लिखना है, रेफरेंस को लेके या बिब्लियोग्राफी को लेके या रिसर्च मेथोलॉजी को लेके, तो आइडिया तो सेम है, लेकिन किताब लिखने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी एक्सप्रेशंस हो सकती है। सबकी अपनी एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन अवेलेबल है, मिलेगा,
क्योंकि कॉपीराइट लॉ ये कहता है कि आइडिया जो है ना वो प्रोटेक्टेबल नहीं है, इट इज द एक्सप्रेशन विच गेट्स द प्रोटेक्शन अंडर द कॉपीराइट लॉ। मैंने कोई चित्र बनाया, मान लीजिए मैंने चित्र बनाया राम का या हनुमान का, या मैंने कोई पेंटिंग बनाई किसी मंकी की या किसी और आदमी की, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है उस पिक्चर में वो प्रोटेक्टेबल है। मैं किसी और आदमी को कॉपीराइट का हवाला देके मंकी का पिक्चर या राम का या हनुमान का पिक्चर बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आइडिया है, आइडिया प्रोटेक्टेबल नहीं होता कॉपीराइट में। इसी तरह मैं लाइब्रेरी साइंस की किताब लिखने से किसी और को नहीं रोक सकता, लेकिन ये जरूर मैं इंश्योर करूंगा कि मेरी किताब से सब्सटेंशियल कॉपिंग ना हुई हो, और वो जो वर्क है जिस लाइब्रेरी साइंस पे या किसी और पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे, वो ओरिजिनेट उसी आदमी से हुआ जो क्लेम कर रहे हैं कॉपीराइट। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखें कि कॉपीराइट ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है, ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट मिल जाता है, आपको इसके लिए भाग के पेटेंट सॉरी कॉपीराइट ऑफिस नहीं जाना पड़ता। आप चाहें तो ऑप्शनल है, आप कॉपीराइट रजिस्टर भी करा सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। इसी तरह ट्रेडमार्क में भी, ये बात मैं रेफर करना भूल गया, कि ट्रेडमार्क में भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है, मैंडेटरी नहीं है कि आप वहां पे भी रजिस्टर ही कराने जाएं। आप ट्रेडमार्क स्टार्ट कर दीजिए यूज करना, लेकिन ध्यान रहे कि वो सारी चीजें जो मैंने बताई थी वो जरूर इंश्योर करें, और आप यूज करते रहें। बाद में कभी जरूरत लगे तो उसे रजिस्टर भी करा लें, ना जरूरत लगे तो मत कराएं, तब भी आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल है। स्टैच्यूट में नहीं है, लेकिन कॉमन लॉ प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल है। आप पासिंग ऑफ एक्शन ले सकते हैं लॉ में, या दूसरी रेमेडीज जो होती हैं, टोर्ट टोर्ट एक पर्टिकुलर सिविल रॉन्ग होता है, अंडर टोर्ट उसमें रेमेडीज आपको अवेलेबल होती है। अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आपको स्टैच्यूटरी रेमेडीज अवेलेबल है। कॉपीराइट की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टैच्यूटरी रेमेडीज हैं, क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है, सिविल रेमेडी भी है। अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट किसी ने किया है या किसी तरह की प्लेजरिज्म सामने आती है, तो जनरली प्लेजरिज्म के केस में और कॉन्टेक्स्ट में जो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस है या यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं या आपकी संस्थान के इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स हैं या डिसिप्लिनरी कोई भी रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म एक एकेडमिक रॉन्ग है। ऑन द अदर हैंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक लीगल इन्फ्रिंजमेंट है या लीगल रॉन्ग है। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा ही है कि वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होने वाला रॉन्ग है, जो प्लेजरिज्म जिसको पॉपुलरली बोला जाता है कि किसी ने प्लेजराइज कर दिया, तो वहां हो सकता है कि क्रिमिनल एक्शन कोई ना लेना पसंद करे या ना ले, लेकिन यूनिवर्सिटी के अपनी डिसिप्लिनरी एक्शन है और दूसरे मेथड्स हैं वो जरूर इन्वॉल्व होते हैं और वो इन्वोक होते हैं। सो फार एज लीगल एक्शन आर कंसर्न, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इम्प्रिजनमेंट भी होती है, यहाँ 2 साल तक की सजा भी है, अरेस्ट भी हो सकता है, बेल करानी पड़ती है। तो कोई भी आदमी वाइल प्रोड्यूसिंग एनी वर्क विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट, बी वेरी केयरफुल कि आप कोई किसी तरह का इन्फ्रिंजमेंट ना करें। तो इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन, स्कल्पचर, आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ, सब कॉपीराइट है। एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, जो कॉपीराइट में आती है लेकिन कंफ्यूजिंग सी लगती है कि ये कॉपीराइट कैसे हो सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे भी कॉपीराइट होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स बेसिकली लिटरेरी वर्क की कैटेगरी में आते हैं, उनको आप पेटेंट नहीं कराते हो। सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग होती है, कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस की पेटेंटिंग होती है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो एक तरह से लिटरेरी वर्क होता है कंप्यूटर या कंप्यूटिंग लैंग्वेज में, वहां पे आपको अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी वर्क्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। ध्यान रखिएगा ये बात। सॉफ्टवेयर कोई है या कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन है तो आपको पेटेंट प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन अगर आपका वर्क एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो लिटरेरी वर्क में कंप्यूटर प्रोग्राम की कैटेगरी में प्रोटेक्ट होगा अंडर कॉपीराइट। अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे परफॉर्मेंस है, कोई आदमी कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा है, कोई सिने फिल्म है, कोई ऑडियो है, वीडियो है ना, ये सारी चीजें भी कॉपीराइट के ही एग्जांपल्स हैं। ओरिजिनलिटी होगी अगर वर्क में और आपका अपना एक्सप्रेशन है जो ओरिजिनल है, तो आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। इसके बाद एक कैटेगरी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। आप लोगों ने काफी सुना भी होगा कि उस फलानी चीज के ऊपर प्रोटेक्शन है, जैसे दार्जिलिंग टी है, मोगा सिल्क है असम का, कारपेट्स है मिर्जापुर के, मेरठ की सीजर्स यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मेरठ सीजर्स पे प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई जरूर किया था लेकिन मिला नहीं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किन चीजों को मिलता है? किन्हीं फूड प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल गुड्स को या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन मिलती है,
और क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे कि जो भी फूड प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चर्ड गुड है, एग्रीकल्चरल गुड है जिस पे आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, वो ऐसा हो, जरूर ऐसा हो वो, कि उसको आप वहाँ की क्लाइमेटिक या सॉयल कंडीशंस या उस पर्टिकुलर एरिया के लेबर की स्किल सेट या उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की स्किल सेट से अटैच कर पाए, एसोसिएट कर पाए, एट्रीब्यूट कर पाए, तब जीआई मिलती है। जैसे दार्जिलिंग टी की अगर बात करें तो ये टी एक अलग तरह की टी है जिसका एसेंस, जिसका अरोमा, टेस्ट वहाँ की मिट्टी और वहाँ की सॉयल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस से आता है। सेम सीड को अगर यहाँ दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ग्रो करना चाहोगे तो वो अरोमा और वो टेस्ट नहीं आएगा, इनफैक्ट वो पैदा ही नहीं होगी यहाँ पे। इसी तरह अगर मोगा सिल्क ऑफ असम देखा जाए या कारपेट्स मिर्जापुर के हैंडमेड, अब ये कारपेट्स बनाए तो किसने हैं? बनाए तो लोगों ने हैं। वहाँ के जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी अपनी कारीगरी है जिसका एक अपना हुनर है, उस हुनर पे एट्रीब्यूट होता है ये, वहाँ उस पे भी आपको जीआई प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसी तरह तिरुपति लड्डू है, कई जगहों के रसगुल्ला है, बंगाल का है, उड़ीसा का रसगुल्ला है, या कार्डमन है कर्नाटका का, केरला का, इन सब चीजों पे ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन मिलती है कि उस फलाना ज्योग्राफी से आती है, ये उस जगह से आती है पर्टिकुलर चीज या प्रोडक्ट। अब 3-4 चीजें हैं जो यहाँ फूड प्रोडक्ट भी, जैसे लड्डू, पेठा कहीं का, आगरे का, वो सारी चीजें ना जगह के हिसाब से प्रोटेक्ट हो जाती हैं। तो ये कहिए कि फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल गुड्स में आ जाएगा आपका टी, बासमती राइस एक्सेट्रा, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कहीं का कारपेट, कहीं का चप्पल, कहीं का कुछ, राइट, कोल्हापुरी चप्पल और वो सब। तो ये सारी चीजें ना ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की कैटेगरी में आती हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर जगह की या उस जगहों की आर्टिजन्स की क्या योगदान है, क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है या फीचर है जो उनके साथ पिक्युलियर है, उन प्रोडक्ट्स को पिक्युलरिटी देता है, उसके रहते ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं जो अभी अभी दिखाए मैंने। मेरठ सीजर को काट देना कैंची से क्योंकि वो उसमें फिट नहीं होता है, वो अप्लाई जरूर हुआ था लेकिन फाइनली उसको प्रोटेक्शन मिली नहीं थी। फिर आइए अगली कैटेगरी है इंडस्ट्रियल डिजाइन। यहाँ पे देखोगे आप कि ये यूनिक डिजाइन पे मिलता है। जो डिजाइन आप अप्लाई करते हो गुड्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई लाइन, कोई फिगर, कोई 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डिजाइन जो आप अप्लाई करते हो चीजों पे, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। आप जब डिजाइन कोई क्रिएट करते हो तो उसका पर्पज क्या रहता है कि वो लोगों को अपीलिंग लगे, सूदिंग लगे, अट्रैक्ट करे सामने वाले को, है ना। और इसका बड़ा यूज, Continue. नाउ इट्स, या इट्स फाइन नाउ, या इट्स वर्किंग फाइन नाउ। तो आई वाज टेलिंग यू कि जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो आप देख रहे हो कि केवल इस बात का यूएसबी है कि डिजाइन जो है वो अपील देता है किसी चीज को या किसी पर्टिकुलर चीज की अट्रैक्शन बढ़ा देता है, और इस मात्र से ही पीपल और कंज्यूमर्स बाय थिंग्स। तो उसको भी ऑफ कोर्स वो भी एक क्रिएटिव वर्क है आपका या क्रिएटिविटी है आपकी, है ना। तो उसको भी प्रोटेक्शन अनडाउटेडली मिलना चाहिए, कि नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इजंट इट। तो यहाँ क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट होती हैं डिजाइन में, मैं बताता हूँ। कोई भी न्यू और ओरिजिनल डिजाइन अगर है, न्यू एंड ओरिजिनल, तो उसको प्रोटेक्शन यहाँ इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में मिलेगी, है ना। इवन अपैरल डिजाइनिंग भी होती है, कपड़ों की डिजाइनिंग पे भी प्रोटेक्शन होती है, शूज की डिजाइनिंग है, किसी आर्टिकल पे भी, चेयर है, कंप्यूटर है, फोन है, टेलीफोन है। अभी पीछे सैमसंग और एरिक्सन कई सालों से झगड़ रहे थे, कितने मल्टीपल सूट्स उनके थे, डिजाइन को लेके लड़ाई थी, सेल फोन्स के डिजाइन को लेके लड़ाई थी कि ये हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है ना। बहुत टेक्निकल लड़ाइयाँ थी वो। एज अ आईपीआर टीचर मैं अगर लो टीचर अगर मैं उन पे बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है 3-4 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर जनरली अगर आप लोगों को जैसे बताना चाहूँ तो इन चीजों पे डिस्प्यूट्स होती हैं डिजाइन प्रोटेक्शन को लेके। तो कोई भी न्यू और ओरिजिनल अगर आपका डिजाइन है जिसकी एप्लीकेशन आप आर्टिकल्स पे कर पाए, तो ये अधिकार आपको ही है कि फिर वो डिजाइन आप ही उन आर्टिकल्स पे लगाएंगे। आर्टिकल्स आपके नहीं हो जाएंगे उससे, चेयर आपकी नहीं हो जाएगी, चेयर का डिजाइन जो है ना, वो एक डिजाइन जो आपने रजिस्टर करा लिया वो आप ही लगाएंगे। फिर कोई और आदमी उस डिजाइन को अप्लाई नहीं कर सकता चेयर पे, लेकिन दूसरे वो डिजाइन चेयर पे लगाते रहे लोग। उस
इस प्रोटेक्शन को 10 साल के लिए दिया जाता है रजिस्टर कराने पे, और ये 5 साल और बढ़ जाती है, टोटल मिला के 15 साल की प्रोटेक्शन यहाँ मिलती है। कॉपीराइट में प्रोटेक्शन जनरली लाइफ प्लस 60 ईयर्स होती है, मतलब पूरी जिंदगी ताउम्र प्लस आपके मरणोपरांत 60 साल या 50 साल की अवधि और होती है कॉपीराइट में। ट्रेडमार्क परपेचुअल प्रोटेक्शन में देता है, पूरी उम्र आपको प्रोटेक्शन रहती है, आप रिन्यू कराते रहें, आपकी आगे लीगल एयर रिन्यू कराते रहें जनरेशन टू जनरेशन। पेटेंट में 20 साल की प्रोटेक्शन रहती है, उसके बियॉन्ड पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं रहती है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता था, जो मैंने बता दी हैं, इतना ही प्लान किया था मैंने। इसके बियॉन्ड मुझे बताना तो बहुत कुछ है और बता सकता भी हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक की जरूरत है। इससे बेहतर ये होगा कि मैं क्वेश्चंस के लिए फ्लोर खोलूं और लोगों के क्वेश्चंस, अगर कोई पर्टिकुलर अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं या उनके खुद के क्वेश्चंस हैं, वो एंटरटेन करूं अगले 10-15 मिनट में। क्योंकि इसको अगर मैं लेजिस्लेटिवली बताने लगूं तो 1 घंटा या 1 दिन की टॉक सफिशिएंट नहीं है, कम से कम हफ्ते भर का प्रोग्राम हो तब तो हम एक एक चीज के डिटेल में जाएं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, क्योंकि आप कोई आईपीआर के स्टूडेंट नहीं है स्पेसिफिकली, आपको केवल जनरल इंट्रोडक्शन मैंने देनी थी। अब पूछिए अगर कोई आपकी खुद की अपनी सवाल है या किसी तरह के क्वेश्चन। I invite all of you to ask any questions, or the floor is open for the questions now. Is there any questions from anyone? कोई भी किसी तरह के सवाल हो जो भी आपके माइंड में है। थैंक यू अश्विनी सर, आपने इतने अच्छे से इतना सिंपल समझाया है कि मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आईपीआर होता क्या है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और क्या हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। Still there is one question in the chat box. Yeah. Who can apply for the geographical indications as it is not related to the individuals? Well, in the case of geographical indication, community right होता है। यहाँ पे ना एक डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जिन्होंने भी पूछा है, और जानबूझ के पूछा है, उनको पता है ये बात, आंसर उनको पता है इसका, लेकिन वो मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं शायद। ये कम्युनिटी राइट होता है, ये इंडिविजुअल राइट नहीं होता है। देखो जितने भी दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेडमार्क है या पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, वहाँ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। यहाँ कॉपीराइट नहीं, यहाँ जीआई के केस में कम्युनिटी राइट होता है। जैसे दार्जिलिंग एरिया है और जो स्पेसिफाइड एरिया है दार्जिलिंग जहाँ टी ग्रो करी जाती है, कल्टीवेशन, दार्जिलिंग टी बोर्ड भी बना हुआ है उसी काम को फैसिलिटेट करने के लिए, तो पूरी कम्युनिटी उसके राइट को एंजॉय करती है। दूसरी बात, अगर कोई नया ग्रोवर है ऑफ दार्जिलिंग टी या कोई नया प्रोड्यूसर है उसी एरिया में रहने वाला या उसी एरिया में दार्जिलिंग ग्रो करने वाला, टी ग्रो करने वाला, वो भी एलिजिबल है उसके राइट को एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसको ऑथराइज्ड यूजर बनना पड़ेगा। सेक्शन 17 है जीआई एक्ट का जो ये कहता है कि आप ऑथराइज यूजर बन सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं उसी एरिया में रहने वाला हूँ, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। और फिर आप अग्री भी करते हैं कि मैं जो मेथोडोलॉजी वहाँ प्रिवेल कर रही है, कोई टी बोर्ड है या कोई और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कम्युनिटी को बेनिफिट ट्रिकल डाउन करने के लिए, तो ही और शी बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेम एंड ही और शी बिकम्स द ऑथराइज्ड यूजर। लेकिन मैं ऑथराइज्ड यूजर दिल्ली में बैठ के, हरियाणा में बैठ के नहीं बन सकता जीआई को एंजॉय करने को, क्योंकि मैं यहाँ ग्रो ही नहीं कर सकता उस चीज को। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कम्युनिटी राइट होता है, पूरी कम्युनिटी पे फॉल करेगा वो। हाँ जी, that's all about it. Any other question? Yes, sir. One more question from Abhishek. Recently, there was an international demand from many countries, including India, for the to waive vaccine patents. I want to ask whether it's an obligation on the part of the producer to agree to waive patent rights. Well, it is again very interesting question from Abhishek, right? Abhishek, let me tell you, waiver की अगर बात करें, it's a proposal initiated by South Africa and India, initially by these two countries. Later on, 90 more countries from the world joined hands with India and applied for the IP waiver to WTO. अब उनकी जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलिए या WTO की अपनी डेलिब्रेशंस होनी है, उनमें आईपी वेवर को लेके
डिसाइड होना है कि ये करा भी जाए कि नहीं करा जाए, लेकिन प्रोड्यूसर के ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन एज ऑफ नाउ नहीं है, क्योंकि दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द वर्क। चाहे वो कोई भी वैक्सीन कैंडिडेट क्रिएट करने वाले लोग हैं, एस्ट्राजेनिका है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, या कोई भी है फॉर दैट मैटर, जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन कल को अगर आईपी वेवर अप्रूव हो जाती है WTO से, then in that case that will become obligatory for them to waive patents from the vaccines. Abhishek, I hope it answers your question. It in fact answers your question. Any other question from anyone? अपने को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, कोई डायरेक्टली पूछना चाहे अश्विनी जी से हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली भी पूछ सकता है चैट बॉक्स में, यदि कोई नहीं। मोस्ट वेलकम। जोगिंदर जी, आप भी एक इस तरह का कोई वेव चला रहे थे ना कि ये जो है पेटेंट राइट से वो होना चाहिए वैक्सीनेशन का, कि ये वैक्सीन जो है जो पुअर कंट्रीज में कैसे जाएगी, कुछ इस तरह की कुछ सर्टेन क्वेरीज हैं जो कि जनरल डिस्कशन में कई बार करते हैं। अगर देखो आप इस पे थोड़ा सा मुझे कमेंट करने के लिए चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन जितनी भी हैं, जितनी कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन कैंडिडेट्स, तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ 8 to 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वर्ल्ड ओवर, और जिसमें से 5 ऑलरेडी लाइसेंस होके इंडिया में अवेलेबल भी हैं या इन दी टाइम्स टू कम अवेलेबल हो जाएंगे। लाइसेंसिंग से अभी तक वेवर नहीं हुआ है, लेकिन लाइसेंसिंग से यहाँ अवेलेबल है। दूसरी एक और बात है कि इंडियन इंडिजीनियस कोवैक्सीन भी है हमारे पास, जो ICMR भारत बायोटेक का है। तो ये जो वैक्सीन है ICMR वाला, ये क्योंकि पब्लिक मनी का है और इसमें पब्लिक फंडिंग भी रही है, ICMR एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी, तो इसको तो आप ये कहिएगा कि ये इसकी कॉस्ट की या इसकी पेटेंटिंग की बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी भी पेटेंटिंग की बात जो है ना वो भारत बायोटेक कर रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जबकि ICMR गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक टैक्स पेयर मनी से रन होती है, फिर किस बात का पेटेंट। दूसरी, अगर पुअर कंट्रीज में पेटेंटिंग की बात, पेटेंटेड प्रोडक्ट या वैक्सीन की बात करें, तो अगर IP वेवर हो जाती है तो हो सकता है कि उन कंट्रीज में ये अफोर्डेबल प्राइस पे चली जाएगी तो जब भी, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पे चली जाए वेवर के बाद और स्विफ्टली चली जाए। लेकिन क्या वेवर नेसेसरी है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप अगर इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फार्मास्यूटिकल कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, whether they will feel encouraged in the future to come out with any such vaccine or any such solution to the pandemic so swiftly, because उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा। ध्यान देने वाली बात है ये। आज वो मॉनेटरी कंसिडरेशन पे काम तो कर रहे हैं, और इसके लिए सरकारें अपना योगदान दें, सरकारें आगे आए, सरकारें वैसा रिलीज करें, कैसे भी करें वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिसी पे। लेकिन पेटेंट वेवर बोलना और फार्मा को डिस्करेज करना, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। दूसरे मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं कि आप कोई सब्सिडी दे दें, उनको फाइनेंसिंग कर दें, टाइमली फाइनेंसिंग कर दें, उनके प्लांट्स को एक्सपेंशन के लिए जगह दे दें, है ना, उस तरह की चीजें करके उनको इंसेंटिवाइज करें, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इंसेंटिवाइजेशन उनका करें। अगर नहीं करेंगे तो आई रियली डाउट कि आगे फ्यूचर में ये कोई पहला पेंडेमिक नहीं और आखिरी नहीं है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि फार्मा रिलीजियसली काम करती रहे और फार्मा सोल्यूशन देती रहे, तो आपको उनको इंसेंटिवाइज तो करना पड़ेगा। आप वेवर करा के ये नहीं कर सकते कि हम तो फ्री में लेंगे जी आपसे। उनके पास क्या वो है, उसका रिटर्न क्या है उस सारी मेहनत का, इतनी इन्वेस्टमेंट और R&D का। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन प्रोड्यूसर के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगी अगर वेवर हो गया, तो आज उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? अश्विनी जी, एक क्वेरी और है मेरी। सर बताइए। अब मान लीजिए कभी कोई जो है, कोई कंपनी जो है ज्वाइंट वेंचर में कोई जो है प्रोडक्शन किसी चीज की करती है, 2 डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती हैं,
तो आईपीआर किस कंट्रीज में जो है वहां पे मतलब उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, या किस कंट्री में, जैसे कोई अमेरिका के साथ इंडिया की कंपनी कर रही है, या जैसे इसमें जो अपने वैक्सीन के केसेस में भी है, तो बेसिकली सर ये लॉ कहाँ के अप्लाई होंगे? ब्रॉडली सर ये डिपेंड करेगा कि उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी कंपनीज जब साथ आके या ज्वाइंटली काम करती हैं तो यूजुअली उनकी एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट होती है। उस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स हैं वो देखी जाएंगी, और वो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट या वो जो टर्म्स होती हैं वो ब्रॉडली दोनों को बेनिफिट करने वाली होती हैं। पेटेंट इंडिया में भी हो जाएगा और अमेरिका में भी हो जाएगा उसका, और दूसरे और जुरिस्डिक्शंस में भी हो जाएगा, क्योंकि पेटेंट ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो गया तो वो अमेरिका में नहीं हो सकता। पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के तहत आप देखेंगे कि इंटरनेशनल फाइलिंग होती है, और इंटरनेशनल फाइलिंग बहुत सारे जुरिस्डिक्शंस में भी फाइल कर सकते हो आप एक ही बार में। फीडबैक लिंक भेज दूं? आज मैं यहाँ इंडिया में भी फाइल करूँ फीडबैक लिंक और भेज दूं? साथ में 10 और कंट्रीज में फाइल करूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखिए वो आ गया ना। ठीक ठीक है सर, थैंक यू, हेलो, थैक यू सर, यस सर, यस सर। थैंक। आरती ये यू कह मे रहे हैं कि कंटिन्यू। वी अर्ली नो दैट रसगुल्ला बिलोंग टू कोलकाता एंड नाउ इट बिलोंग्स फ्रॉम उड़ीसा। ये नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। जिसने भी पूछा है उसे शायद एडिक्वेट या ये कहूंगा कि कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि ये कोलकाता और उड़ीसा की जो रसगुल्ला को लेके जीआई की फाइट थी उसमें आउटकम क्या है। उसमें आउटकम ये है कि रसगुल्ला का अपना उड़ीसा नहीं, सॉरी, उड़ीसा का अपना रसगुल्ला है और कलकत्ता का अपना है या बंगाल का अपना है। दोनों को जीआई मिला है, दोनों की अपने अपने अलग अलग पे। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना, दोनों की अपनी अपनी पिक्युलर टेस्ट है, और ओरिजिन को लेके उनकी अपनी ट्रेसेबिलिटी है, और जीआई रजिस्ट्री ने दोनों को ही दे दिया। कलकत्ता का अलग है अपना, उड़ीसा का अलग है। इसी तरह केरला का अपना कार्डेमम है, कर्नाटका का अपना कार्डेमन है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स कई सारी टेरिटरीज में या मल्टीपल टेरिटरीज में होते हैं, और मल्टीपल टेरिटरीज में ही उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन की उन टेरिटरीज की पिक्युलर कंडीशंस या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको एट्रीब्यूट करके आप उनके करेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट कर सकें। और ये कलकत्ता और उड़ीसा की लड़ाई में ना दोनों को मिला है वहां पे, खाली एक को नहीं मिला है। अंशुल पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा सा। और एक और क्वेश्चन पूछा है तेजिंदर सिंह ने, हाउ अ पर्सन सिटिंग इन यूएसए कैन गेट पेटेंट फ्रॉम फॉर नीम सीड्स व्हाइल दिस इज नॉट एन इंडिजिनियस प्लांट टू दैट कंट्री। ये जिसने भी पूछा है, मैं फिर ये कहूंगा कि पेटेंट लेना एक चीज होती है और उसकी वैलिडिटी दूसरी चीज होती है। बहुत बार पेटेंट्स मिस्टेकनली एरोनियसली ग्रांट कर दिए जाते हैं बाय द पेटेंट ऑफिसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस, बट जब चैलेंज होते हैं तो ये पाया जाता है कि पेटेंट वो सब्जेक्ट मैटर जो था जिस पे पेटेंट मिला दैट वाज नॉट वैलिड, और उसको इनवैलिड करार कर दिया जाता है, इनवैलिडेट कर दिया जाता है, रजिस्टर से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है। इसमें कंट्रोवर्सी बहुत सारी हुई है। टैक्समती और बासमती सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सी है कि बासमती पाकिस्तान और इंडियन रीजन में होने वाला एक राइस लाइन और अरोमा का एक राइस है, वो टैक्समती के नाम से टेक्सास स्टेट में रजिस्टर करा लिया गया। तो जब भारत को पता चला तो यहाँ से आईसीएमआर से एक इनवैलिडेशन के लिए एप्लीकेशन लगाया गया और उसको इनवैलिडेट कराया गया। सो इज द केस ऑफ टर्मरिक पेटेंट, सो इज द केस ऑफ नीम और इट्स थेरेपेटिक एफिकेसी इज कंसर्न। तो इस तरह की बहुत सारी अटेम्प्ट्स होती रहती हैं, लेकिन जब भी इस तरह की कोई पेटेंटेड वर्क दिखे या पाई जाए, उसको इनवैलिडेट कराने के लिए ग्राउंड्स हैं बकायदा, और डब्ल्यूटीओ की अपनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी भी है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। जिसने भी ये पूछा है, आई होप इट आंसर्स हिज और हर क्वेश्चन। तजिंदर सिंह हैज आस्क्ड दिस एंड यही मेरा इस पे जवाब है। इनफैक्ट तजिंदर जी, मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल नॉलेज पे इंडिया में भी नहीं होगा उस पे पेटेंट, अगर कोई चाहेगा तो। वो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके ऊपर पेटेंटिंग नहीं होगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर पेटेंट नहीं होता। हो सकता है कोई एक्सटांट वेराइटी है, न्यू वेराइटी है प्लांट का, तो उस पे प्लांट राइट जरूर मिल जाएगा अंडर द प्लांट राइट्स एंड फार्मर्स राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन पेटेंट नहीं मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?
एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपकी आवाज आ रही आवाज है? नहीं आ रही है, बोलिए, वो है। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना है कि अगर कोई जैसे आईपीआर के अंदर हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कॉपीराइट हो जाता है। जैसे कोई अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा है या किसी भी प्लेटफॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो अंडर मतलब कॉपीराइट ऑटोमेटिक होता है या इट्स डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म? प्लस क्या ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन आएगी ऋतिक, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन आएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो वर्क आपसे ओरिजिनेट हुआ हो और आपका एक्सप्रेशन हो ओरिजिनल, ये नहीं है कि वो कॉपीड हो। एक बात। अब दूसरा सवाल पूछिए अपना कि आप प्लेटफॉर्म को क्यों मेंशन कर रहे थे यहाँ पे। प्लेटफॉर्म ऋतिक, इसलिए सर जैसे कोई अगर पहले जैसे टिकटॉक था। आपकी वॉइस नहीं आ रही है ऋतिक। हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर कि जैसे पहले टिकटॉक था, तो उसके ऊपर जो कंटेंट था वो भी कॉपीराइट के अंदर आ सकता है, या जो कोई मतलब ज्यादा जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं के ऊपर कंटेंट क्रिएट किया हुआ कॉपीराइट पे आता है? देखिए, इसमें इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। एक बहुत महंगी टेक्स्ट बुक पे लिखो और एक 10 रुपए वाले रजिस्टर पे लिखो, नोटबुक पे, बराबर बात है ना। कंटेंट मैटर्स, द एक्सप्रेशन मैटर्स, इट यस। इज नॉट द प्लेटफॉर्म विच मेक्स द डिफरेंस। प्लेटफॉर्म हैज नथिंग टू डू विद इट। आप 10 रुपए के रफ रजिस्टर पे कुछ लिख रहे हो ओके। या आप कोई 100 रुपए की नोटबुक पे लिख रहे हो, दैट विल नॉट मेक द डिफरेंस। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हो कि टिकटॉक पे जो कंटेंट था या यूट्यूब पे आज कोई कंटेंट है या किसी और प्लेटफॉर्म पे कोई सोशल मीडिया के कंटेंट है, यहाँ जो टर्म्स और कंडीशंस या टर्म्स और पॉलिसी ऑफ द प्लेटफॉर्म है, वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगी ये डिटरमाइन करने में कि कॉपीराइट कौन एंजॉय करेगा उस वर्क पे। क्या वो क्रिएटर कॉपीराइट एंजॉय करेगा या ये प्लेटफॉर्म ये कहता है कि while you upload your work on the platform, the copyright would get exhausted and it will lie with the platform then। तो ये डिपेंड करता है कि क्या उनकी कंडीशंस है, क्या उनकी टर्म्स है। लेकिन एज्यूमिंग कि उनकी कोई टर्म्स ऐसी नहीं है, तो जो क्रिएटर है उसी पे जाएगा ये, वो ओनरशिप उसकी ऑथर की होगी इस पे, जो उसको प्रोड्यूस करने वाला है या ओरिजिनेट करने वाला है उस वर्क को। ऋतिक। ओके सर। तो सर अगर हम या ऐसा कंटेंट पाते हैं कि जो हमारा कंटेंट और कोई यूज कर रहा है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हम कि उसके ऊपर केस करें, या लीगली क्या प्रोसीजर रहता है इसका, और इसमें पनिशमेंट क्या रहती है कि अगर कोई उसमें देखिए, मतलब हमारा उसमें कंटेंट यूज उसमें करे? हाँ, आपका कंटेंट अगर कोई आदमी कॉपी कर रहा है या कॉपीराइटेड वर्क आपका कोई कॉपी कर रहा है, तो इसमें आपके पास मैंने बता दिया कि क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल है। आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का सूट डालेंगे इन दी अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। जिस भी एरिया का मैटर है उस पर्टिकुलर एरिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मैटर जाएगा और वहां कोर्ट डिसाइड करेगी ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें इम्प्रिजनमेंट होती है, मैंने बता दिया था कि 2 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है इसमें। ऋतिक। ओके सर, थैंक थैंक यू। Any other question from anyone? Does anyone have any other further questions? I am happy to take up. Otherwise, I think it is the time to conclude. हेलो I think it's okay, sir. हेलो हाँ जी, हाँ जी। वही लिख रहे हैं कि do the verdicts of courts come under? No. कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होती हैं वो पब्लिक राइट होता है उनके ऊपर। सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट में उनको पब्लिक वर्क बोला गया है। उनके ऊपर कॉपीराइट नहीं होता किसी जज का या कोर्ट का। राजेंद्र जी।
आपके सवाल बड़े अच्छे अच्छे हैं. You seem to be reading copyright law or learning it. I'm enjoying your questions, but I know answers of all these questions. Thankfully, years of teaching of this subject puts me in a position to answer these questions. Okay, Aarti, you. Yes, sir. सर आपने Hello. बहुत अच्छे से हाँ. बहुत ही ब्यूटीफुली यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड सेटिस्फाइड एवरीवन with your answers. So proceeding ma'am. further, I will request Dr. Prem Singh to please pay the vote of thanks. Thank you very much, Dr. Aarti. Honorable Dr. Ashwani Siwalji, thank you very much for delivering such an excellent webinar, such an excellent lecture. It would have been much better if we could listen to you sitting in front of you. But I pray to Almighty for this Yes, sir. opportunity in future. Sir, you have elaborated Right. all the different aspects of intellectual property rights. You have very lucidly explained about the trademarks, copyrights, related activities, about the geographical indication, industrial design, protection of new varieties of plants, and also explained about optional and mandatory copyrights. And you have explained all the answers in a very perfect manner. So we are very much thankful to you. I, on behalf of the management of institution, on behalf of our honorable principal, on behalf of all the faculty members and the real ambassadors of this institution, that is our students, I welcome you and I thank you again for delivering such Thank an you very much, extensive lecture. I am very much thankful to all the faculty members who have joined this webinar and who have been benefited from the expertise of Honorable Sir. I am also thankful to all the students and to the organizers, especially Dr. Balesh Kumar, Dr. Sushil Kumar, IQAC convener, Dr. Aarti, Dr. Girdhar Gopal, Dr. Chavi Kiran, Dr. Gulshan Singh, and Dr. Mohit, and all other persons who were directly or indirectly involved in organizing this webinar. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. It is indeed my pleasure to have been invited by this institution. Thank you, sir. And again, a pleasure for this nice and wonderful vote of thanks, Dr. Prem ji. I would also like to extend my gratitude to Dr. Balesh and Dr. Aarti and other learned colleagues from Sanatan Dham College, Dr. Mohit and many other, Chavi, Kiran, whom I am able to trace and see here. Indeed, Dr. Prem, it is a missed opportunity for me that I could not visit the institution. I would have loved to come, physically over there and see in future that we looking forward to visit the institution in person in the future for sure. It's indeed a pleasure. Thank you so very much to all of you, and thank you to the students for. Sir, in our institution, we Thank have you, sir. started Institutions Innovation Center, that is with the help of Ministry of Education. Our principal has constituted a committee and we are working on that, and in future we will take your help in that also. Because for Sir, it would be my pleasure, sir, and honor. I would like to certainly contribute. Many of you may not know or may know that I come from Haryana, and I owe a special responsibility to give back to my state, to my hometown. And there is another reason why I feel so glad whenever I get associated with Ambala city. My sister is married in Ambala, so I rarely come to that place, but it is again a place where my relatives are there, my friends are there. So I would like to be associated with that also, sir. My pleasure, always. Thank you. Aarti ma'am. Thank you so much, sir, Thank you, for sir. sparing your valuable time. बहुत अच्छा लगा आपकी टॉक सुन के, आपसे डिस्कशंस करके, और बहुत कुछ हमने सीखा. Being a member of IIC and IQAC,
एंड हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये एसोसिएशन विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। जैसा कि आपने कहा, श्योर कर ही दिया है हमें, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट्स मैम, एनी टाइम एट योर डिस्पोजल। डॉक्टर बलेश हमेशा बड़े प्रॉम्प्ट और कोऑपरेटिव हैं। कभी भी आपको लगे कि मैं किसी भी काम में हेल्प कर सकता हूँ, आपकी इंस्टीट्यूशनल हेल्प, तो मुझे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैम। इट वुड बी माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, Feedback थैंक यू link फॉर ज्वाइनिंग। is already shared in the chat box. Everyone, please fill the feedback link before leaving the meeting. जैसे ही आप feedback form भर दें, you may please leave. So may I have the permission, Dr. Balesh and Aarti and Dr. Prem Yes, and sir. other Yes, sir. respected Sure. colleagues to Yes, sir. leave? जैसे आपको ठीक लगे। जी सर। Thank you, As thank per you your very much. request. Thank Okay, you, thank you so much, sir. मीटिंग को भी क्लोज ना करना, थोड़ी देर चलते रहने देना ताकि फीडबैक लिंक जो है वो जी जी जी, ठीक है सर। अवेलेबल रहे। जी सर। हेलो आरती। हाँ जी सर, हाँ जी। We will continue with 10 more minutes in the meeting and then we will disconnect. Everyone, please fill the feedback form before leaving the meeting. ओके ओके, थैंक यू।